ओके आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे क्लासिफिकेशन इन डेटा माइनिंग टॉपिक के साथ। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द डिसीजन ट्री used for classification in data mining. Before that, here is a list of techniques that are available for applying classification in data mining. Decision trees, artificial neural networks, genetic algorithms, K nearest neighbor, memory based reasoning, and naive Bayes. These are some of the techniques that can be used for implementing classification in data mining. Some of the applications of data mining or classification model in data mining are fraud detection, performance prediction, loan decision applications, and computing the churn rate. Now, what is a decision tree? A decision tree can be used in wide range of problems. Basically, where we use a decision tree is where there is generally a division of data into two classes. For example, pass, fail, boys and girls. So there the splitting criteria is used to split the data based upon some rules to identify कि कौन से रूल के अकॉर्डिंगली कौन सी कैटेगरी का डेटा ज्यादा सेलेक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, like we said, there are two set of data available like boys and girls. So we want to know for which sport, based upon which criteria, the boys take which game and the girls take which game. Or if we want to, you can split the data set like pass and fail. We know how many students passed and how many students failed in an institute, and based upon some criteria we want to find that under which rule applies for the students who fail and which rule applies for the students who passed. So these rules are also known as the splitting criteria. तो हम लोग split करते हैं उसको. So initially you can say हमारे पास एक डेटा अवेलेबल है, like I said, कि कितने स्टूडेंट पास हुए और कितने स्टूडेंट फेल हुए. तो let us suppose in total if you have at the top there are let us suppose 200 students in total, of which 100 are boys and 100 are girls. So this is equal division. And you can take another data set, something like this. If you have, let's say, 2000 students in total in an institute, of which, let's say, 1200 students passed and 800 students failed. Now you want to know which students failed and which student passed. So you are going to split the data in such a way that you can have a separate set of students who passed and separate set of students who failed. So in the set of students who failed, either all the data belongs to the student who failed or some students who passed, and in the set of students who passed, सभी के सभी students वो होने चाहिए जो पास हुए हैं, and none of them failed. This is in technical terms called the purity. अब प्योरिटी क्या है? अगर आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो दिस इज हाईली इम्प्योर. हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे आगे, सो देयर इज नो नीड टू गेट कंफ्यूज्ड. हाईली इम्प्योर क्यों है? क्योंकि इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन है बॉयज एंड गर्ल्स यानी दोनों सेट्स की. दिस इज ऑल्सो हाईली इम्प्योर क्योंकि इसमें जो डिवीजन है वो 60/40 की है. तो ये दोनों ही इम्प्योर है. तो प्योर क्या होगा?
अगर हम कुछ ऐसा स्प्लिटिंग क्राइटेरिया लगाएं कि एक सेट के अंदर 100 गर्ल्स हो जाएं और एक के अंदर 100 बॉयज हो जाएं, कुछ इस तरह से। पहले हमारे पास टोटल 200 स्टूडेंट्स थे जिसमें 100 गर्ल्स थी और 100 बॉयज थे। हमने कोई क्राइटेरिया लगाया, गर्ल्स अलग हो गई, बॉयज अलग हो गए। अब इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉयज हैं, एंड दीज टू रिप्रेजेंट हाईली प्योर स्प्लिटिंग। जो इसके ऊपर थी वो हाईली इम्प्योर स्प्लिटिंग थी। तो इन चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज अ डिसीजन ट्री? डिसीजन ट्री सेल्स आर फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ईच डायमेंशन इनटू रैंडम नंबर ऑफ इवनली स्पेस्ड पार्टीशंस, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये पार्टीशन अचीव होती कैसे है? पार्टीशन अचीव होती है on the basis of some splitting criteria. The degree to which a cell has similar values is known as purity of the cell. प्योरिटी क्या होती है वो भी मैंने आपको बता दिया। एक सेल हाईली प्योर होगा अगर उसके अंदर सिर्फ एक क्लास ऑफ डेटा है। अगर किसी सेल के अंदर 2 क्लास ऑफ डेटा इक्वली रिप्रेजेंटेड है तो वो हाईली इम्प्योर है। ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। रूट नोड यानी जो नोड सबसे ऊपर आती है, जनरली इट इज द हाईली इम्प्योर, क्योंकि हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं तो वो हाईली इम्प्योर होती है। जैसे ये आपकी रूट नोड है, इट इज जनरली इम्प्योर इन नेचर बिकॉज यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमें हमारे रिजल्ट कार्ड से बता दिया गया है कि आपकी एक क्लास के अंदर 65 स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस गुड है और 35 स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बैड है, ये हमें गिवन है। अब हमने एक क्राइटेरियाज लगाने हैं ताकि हम लोग डेटा को स्प्लिट कर सके और इसको प्योर कर सके। तो हमने सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो क्या लगाया है? हमने सबसे पहला क्राइटेरिया लगाया है अटेंडेंस। अटेंडेंस greater than 70% and attendance less than 70%। तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने अवेलेबल थे? 100। जैसे ही हमने अटेंडेंस का क्राइटेरिया लगाया तो 55 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 70% थी और 45 स्टूडेंट्स थे जिनकी अटेंडेंस लेस देन 70% थी। तो ये हमने स्प्लिट अचीव किया। अब इस स्प्लिट से हुआ क्या? जो 55 स्टूडेंट्स जिनकी अटेंडेंस 70% से ज़्यादा थी उनमें से 40 गुड हैं और 15 बैड हैं, और जिनकी अटेंडेंस 45 से कम थी उसमें 25 गुड हैं और 20 बैड हैं। तो अभी हम लोग प्योरिटी अचीव नहीं कर पाए हैं क्योंकि अभी भी दोनों क्लासेस की रिप्रेजेंटेशन है। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या लगाया? हमने नेक्स्ट क्राइटेरिया लगाया परसेंटेज। either the percentage is greater than 60 or either the percentage is less than 60। greater than 60 equal to 60 और लेस देन 60। जैसा ही हमने ये वाला क्राइटेरिया लगाया तो फर्दर स्प्लिट हो गया। ये जो 55 था ये स्प्लिट हो गया 40 और 15 में, और ये 45 जो यहाँ पर था ये फर्दर स्प्लिट हो गया 23 और 22 के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस वन इज रिलेटिवली गुड। इसमें प्योरिटी काफी हाई है बिकॉज इसमें एक क्लास बहुत ज्यादा है और एक क्लास बहुत कम है, लेकिन बाकियों में इतनी ज्यादा प्योरिटी अचीव नहीं हो पाई। हम लोग तब तक कंटिन्यू करते हैं जब तक हमें एक सेटिस्फैक्ट्री प्योरिटी जो है वो अचीव नहीं हो जाती। लेकिन हम डिसाइड कैसे करते हैं कि हमें कौन सा क्राइटेरिया लगाना है, दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस। लेकिन ब्रॉडली मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि हाउ वी स्टार्ट फ्रॉम इम्प्योर सेट ऑफ डेटा। इम्प्योर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दोनों क्लासेस की रिप्रेजेंटेशन काफी सिमिलर है और सडनली वी मूव टुवर्ड्स द प्योरिटी। तो इम्प्योरिटी क्या है? अगर 50% ऑफ ए एंड बी
this is impure, and 100% of A or B is pure. ठीक है। अगर आप अटेंडेंस के बेस पर अगर 100 स्टूडेंट्स थे, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपके पास टोटल 100 स्टूडेंट्स थे स्टार्टिंग में 65 गुड, और मान लीजिए अटेंडेंस क्राइटेरिया को बढ़ाकर मैं 70 से बढ़ाकर 90 कर देता हूं कि भाई 90% अगर आपकी अटेंडेंस है तो बताइए क्या होगा। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स जो आते हैं उनमें लेट्स से 35 गुड है एंड 0 बैड हो जाए, मतलब बैड स्टूडेंट एक भी नहीं है जिसने 90% से ज्यादा लगाई हो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो गए हैं, आप देख सकते हैं 55 से कम होकर 35 हो गए, लेकिन प्योरिटी अचीव कर ली हमने। कैसे कर ली? हमने अटेंडेंस को 70 से बढ़ाकर 90 कर दिया। तो अगर 35 स्टूडेंट्स इधर हैं तो 65 स्टूडेंट्स इधर आएंगे, तो हम लोग यहाँ पर फर्दर उनको करते रहेंगे, लेकिन हमने जब 90% अटेंडेंस कर दी तो कम से कम एक साइड की प्योरिटी हमने अचीव कर ली। तो ये वैल्यू कितनी होगी, कौन सा क्राइटेरिया होगा, कैसे चूज करेंगे, दीज थिंग्स आर डिस्कस्ड लेटर। सो मेजरिंग द इम्पैक्ट ऑफ द स्प्लिट। जब हम लोग एक स्प्लिट करते हैं तो हम लोग उसका इम्पैक्ट कैसे मेजर करते हैं कि हमें फायदा हुआ या हमें फायदा नहीं हुआ। तो एक चीज हो सकती है कि पेरेंट नोड पर जब हमने एक क्राइटेरिया से स्प्लिट लगाया तो चाइल्ड नोड की प्योरिटी या तो बढ़ गई है या वो प्योरिटी नहीं बढ़ी है। अगर आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे तो दो अलग अलग तरह के सिंबल्स दिखाए गए हैं रिप्रेजेंट करने के लिए डेटा को। तो एक है आपका स्क्वायर्स हैं और एक आपका प्लस सिंबल है। तो स्क्वायर्स रिप्रेजेंट वन क्लास ऑफ डेटा और प्लस रिप्रेजेंट्स अनदर क्लास ऑफ डेटा। तो टोटल कितने हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। सो टोटल नंबर ऑफ प्लस वी हैव इज 8 and total number of squares we have is 8, which means 50% each। इसका मतलब ये highly impure है। जब हमने हमारा फर्स्ट स्प्लिट लगाया तो आप देख सकते हैं कि जो स्प्लिट लगाने के बाद दोनों तरफ मैं देखता हूं तो दोनों तरफ फिर से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही आ रही है। यानी इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो प्लस एंड स्क्वायर्स हैं, बराबर के हैं। इसमें भी प्लस और स्क्वायर बराबर है। तो इसका मतलब हमें कोई फायदा नहीं हुआ है इस स्प्लिट लगाने का। दैट मीन्स इट इज अ पुअर स्प्लिट। तो लाइक हेयर another set of poor split because one set has become plus, so I will say this is good in a sense कि हमें एक सेट जो है वो हमें मिल गया है। हमें एक सेट जो है वो बिल्कुल प्योर मिल गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। और ये जो है इसका जो जनरल साइज है दैट इज वेरी स्मॉल। अगर ये साइज थोड़ा सा बड़ा होता यानी एक या दो और प्लस होते, जैसा हमने पिछला एग्जांपल देखा था तो उसमें 35% था, तो यहाँ पर अबाउट 25% है। अगर हम लोग एक मिनिमम ले लेते कि इसमें प्लस एक और होता, दो ना भी होते, अगर एक और होता तो मैं इसको एक गुड स्प्लिट मान लेता। लेकिन अभी क्या हुआ है कि ये जो टोटल 16 एलिमेंट्स थे इसकी जो डिवीजन हुई है वो ऐसे हुई है कि इसमें 12 चले गए हैं और इसमें 4 गए हैं। तो आई कंसिडर्ड इट टू बी अ पुअर स्प्लिट एज वेल। अगर कहीं ये 10-6 होता और ये बिल्कुल प्योर होता तो मैं इसको गुड स्प्लिट मान लेता। तो ये भी एक पुअर स्प्लिट का एग्जांपल है जिसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वन एज कंपेयर टू अदर इज लेस। अब हमारे पास एक तीसरी तरह का स्प्लिट है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जब हम स्प्लिट करते हैं तो टोटल 16 एलिमेंट्स थे, 8 एंड 8, 8 प्लस के एंड 8 स्क्वायर के। जब ये स्प्लिट हुआ तो यहाँ पर 7 1 हो गया है, यहाँ पर 1 7 हो गया है। एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ गुड स्प्लिट विच इज प्योर।
So this is an example of a split which tells me that this is good split और मुझे फायदा हुआ है. जरूरी नहीं है कि एक ही बार में मुझे बहुत ज्यादा कुछ मिल जाएगा, हमें इसके बाद फर्दर स्प्लिट भी लगाने पड़ेंगे, लेकिन एक स्प्लिट लगाने का फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है हमें वो मैयर करना ही पड़ेगा. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कैन मैयर द इम्पैक्ट ऑफ अ स्प्लिट. स्प्लिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए and one class should have the maximum you can say weightage. और इस केस में मैक्सिमम वेटेज इस क्लास में फर्स्ट लेफ्ट वाले चाइल्ड में स्क्वायर की है और राइट हैंड चाइल्ड में प्लस की है. सो दिस इज अ गुड स्प्लिट. सो one of the algorithms that we are going to discuss in here is called the decision tree induction algorithm. The decision tree induction algorithm was developed by J. Ross Quinlan in 1970. So you can just imagine how old this decision tree algorithm is. And the decision tree induction algorithm is also known as ID3. And this is the very basic and the initial version of decision tree algorithm. उसके बाद बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है इसके अंदर. इसमें कार्ट टेक्निक है जिसमें क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री बोलते हैं. ID3 के बाद C4.5 and then CART and further so many algorithms have come up for classification. So basically we are going to study the most basic algorithm for decision tree induction which is known as ID3. ये क्या फॉलो करती है? ये टॉप डाउन रिकर्सिव अप्रोच फॉलो करती है. जैसा हमने देखा है डिवाइड एंड कॉन्कर, यानी आपके पास 200 स्टूडेंट्स का इनिशियली या 2000 या 2 लाख स्टूडेंट्स का सेट अवेलेबल है, हम उसको स्प्लिट करते हैं छोटे उसके अंदर, फिर और उसको स्प्लिट करते हैं. तो यानी हम लोग टॉप से डाउन आते हैं, रिकर्सिवली बार बार स्प्लिट करते हैं और डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को जो है हम लोग अचीव करते हैं. तो इसमें इनपुट क्या है, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हमारे पास इनपुट्स क्या हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनपुट दिया गया है डाटा सेट डी. ठीक है. तो डाटा सेट डी क्या चीज है? जैसा मैंने आपको बताया था कि सेट ऑफ लेट से 2 मिलियन स्टूडेंट्स हैं. इसमें से लेट से जो 1 मिलियन स्टूडेंट्स हैं वो गर्ल्स हैं और 1 मिलियन जो हैं वो boys हैं. So this is the total data set which is of 2 million, and these are the two class label. One is girls and one is boys. So this is given to us. Next is attribute list is a set of candidate attributes. हमें attributes कुछ दिए गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि उस डेटा में उनकी अटेंडेंस है, उनके लेट्स से एड्रेस है, उनका परसेंटेज ऑफ मार्क्स है. ठीक है. उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड है एंड सो मच. सो आगे आगे ये सब कुछ दिया गया है. दिस इज कॉल्ड द एट्रीब्यूट लिस्ट. एंड द लास्ट वन इज द एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेथड. तो जैसा हम कौन सा एट्रीब्यूट इनमें से सेलेक्ट करेंगे, ये जो हमें गिवन सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है इनमें से हमने कौन सा एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना है, दैट विल डिपेंड अपॉन एन एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेथड. यू कैन पिक अप एनीथिंग बट आप उस एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करेंगे विच विल रिजल्ट इनटू द बेस्ट पार्टीशनिंग ऑफ द डेटा. उसको हम लोग पहले लेंगे, जिसका लेस है उसको हम लोग नीचे लेंगे. तो हम लोग सबसे ऊपर उसको सेलेक्ट करते हैं एट्रीब्यूट को विच विल रिजल्ट इनटू द बेस्ट स्प्लिट. ओके. So let us continue. So this is the various inputs that will be given to the algorithm. What is the code? The code is create a root node. ये ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले आप टॉप पर एक रूट नोड बनाएंगे. इस रूट नोड में पूरा का पूरा डेटा सेट जो है वो आपका अवेलेबल होगा. टोटल डेटा सेट हमारा कितना है? 2 मिलियंस का. 1 मिलियन गर्ल्स एंड 1 मिलियन बॉयज. तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें तो पता ही है कि ये हाईली इम्प्योर है, लेकिन फिर भी जब
एल्गोरिदम को नहीं मालूम है, वो हो सकता है कि 2 मिलियन जो आपने टोटल लिया है उसमें से 2 की 2 मिलियन बॉयज हैं या 2 की 2 मिलियन गर्ल्स है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी वो डेटा जो है वो स्प्लिट हुआ हुआ है। तो वो ये चेक करता है कि अगर सारे के सारे टपल्स एक क्लास को बिलोंग करते हैं तो फिर जो आपकी रूट नोड है वो वही उसी को लीफ नोड बना दो। अगर वो सारे नेगेटिव हैं तो भी आप उसकी क्लासिफिकेशन खत्म कर सकते हो, स्टार्टिंग में ही खत्म हो गई, बिकॉज ऑल ऑफ देम बिलोंग टू अ सिंगल क्लास। अगर ऐसा नहीं है, then what we are going to do is we are going to start with the algorithm। ठीक है, एट्रीब्यूट लिस्ट नेचुरली हमारी शुरू में खाली नहीं होती है, तो स्टेप नंबर 4 जो है वो इतना रेलेवेंट नहीं है कि वो खाली हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी एल्गोरिदम के साथ, जहां पर हमें स्प्लिटिंग की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे। एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेथड हमें ये बताएगा कि आप कौन सा एट्रीब्यूट चूज कीजिए अपनी एल्गोरिदम के लिए जो बेस्ट क्लासिफाई करेगा और रूट नोड को। तो देन फॉर ईच पॉसिबल वी आई, फॉर ईच पॉसिबल वैल्यू वी आई, रूट नोड की वैल्यू की बात कर रहे हैं, एड अ न्यू ट्री ब्रांच बिलो द रूट। यानी अगर आपका रूट नोड है ए, ये है आपका रूट नोड, इसमें सभी एलिमेंट्स को वी आई कहा गया है, तो एड अ न्यू ट्री ब्रांच बिलो द रूट, यानी लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड हम लोग ऐड करेंगे और उसके अंदर उस वैल्यू को डाल देंगे। ठीक है, देन below this new branch, add a leaf node with label most common target value of the majority class in D. Else, below this new branch, add the subtree ID3 D of IB attribute list and selection method। अगर तो आपको प्योरिटी अचीव हो गई है तो काम खत्म, अगर प्योरिटी अचीव नहीं हुई है तो हम लोग फिर से इसी एल्गोरिदम को रिकर्सिवली दोबारा कॉल करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर आपका टोटल रूट नोड में 2 मिलियंस है, 1 मिलियन गर्ल्स हैं एंड 1 मिलियन बॉयज हैं। जब आपने स्प्लिट किया तो लेट सपोज आपने ये अचीव किया कि 1 मिलियन इधर चला गया, 1 मिलियन इधर चला गया। 1 मिलियन में से आप मान लीजिए कि 0.5 0.5 0.5 एंड 0.5 मिलियन जो है वो बॉयज एंड गर्ल्स में स्प्लिट हो गया। तो ये तो एक बहुत ही बुरा स्प्लिट है। या आप 0.64 एंड 0.4 एंड 6 मान के चलिए, तो थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है लेकिन ये अच्छा स्प्लिट नहीं है। तो हम लोग फिर से कंटिन्यू करें। लेकिन अगर आपको आपका रिजल्ट यहीं पर अचीव हो गया है, इसी लेवल पर अचीव हो गया है, तो हम लोग यहीं पर रुक जाएंगे, अदरवाइज वी विल मूव फर्दर। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन रिकर्सिव एल्गोरिथम। लेकिन पूरा एल्गोरिथम इस चीज के ऊपर अड़ा है कि आप कौन से एट्रीब्यूट को चूज करते हैं स्प्लिट करने के लिए। आप अटेंडेंस को चूज करते हैं, आप परसेंटेज को चूज करते हैं, आप उसकी लेट से प्लेसमेंट को चूज करते हैं। तो उसके लिए हमें जो एट्रीब्यूट सेलेक्ट किया गया है, उसने जो स्प्लिट किया है उसके रिजल्ट को मैयर करना पड़ेगा। तो हम लोग जनरली उस चीज को क्या बोलते हैं, हम लोग उसको एट्रीब्यूट सिलेक्शन मैयर बोलते हैं। तो उसके अलग अलग मेथड्स हैं उसके इम्पैक्ट को मैयर करने के लिए। तो वन ऑफ द मेथड इज कॉल्ड द गिनी इंडेक्स। तो अब हम लोग कहाँ बढ़ चुके हैं, एट्रीब्यूट सिलेक्शन मैयर को देखने के लिए कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट। द फर्स्ट वन इज गिनी इंडेक्स। गिनी इंडेक्स डिफाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू आइटम्स चूजन एंड रैंडम फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन बिलोंगिंग टू द सेम क्लास। उसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक डेटा है जिसके अंदर दो क्लास ऑफ डेटा है, वन इज बॉयज एंड द अदर इज गर्ल्स। So let us say that we have a 2 million total data. इसमें से 1.3 million are boys and 0.7 million of the data is girls.
अगर हम लोग इसमें से दो आइटम्स को सेलेक्ट करते हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आउट ऑफ दीज वन विल बी अ बॉय एंड वन विल बी अ, दिस इज कॉल्ड गिनी इंडेक्स। गिनी इंडेक्स हमें प्रोबेबिलिटी देता है कि अगर मैं दो रैंडम आइटम्स को सिलेक्ट करता हूं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आइदर बिलोंग टू द सेम क्लास और नॉट। इफ द प्रोबेबिलिटी इज हाई विच मीन्स कि आपको एक बॉय और एक गर्ल मिलेगा तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। वट वी वॉन्ट इज दैट दे शुड बिलोंग टू द सिंगल क्लास। जब वो सिंगल क्लास को बिलोंग करते हैं देन ओनली द प्योरिटी कैन बी डिफाइंड बेटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर अ प्योर पॉपुलेशन द प्रोबेबिलिटी इज वन एंड ऑल द स्टूडेंट्स बिलोंग टू वन जेंडर। इन दिस वी आर सेइंग कि हमने डिफाइन किया है कि अगर प्रोबेबिलिटी वन है तो दे बिलोंग टू द वन क्लास। सो इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है वो अलग ली गई है क्योंकि हमारे पास दो चीजें पॉसिबल हैं। One is that what is the probability if I pick up two items, they belong to the same class? What is the probability if I select two items, they belong to the डिफरेंट क्लास? इन दोनों के लिए हम लोग गिनी इंडेक्स ले सकते हैं। यहां पर जो डेफिनेशन ली गई है वो ये है कि इफ आई पिक अप टू आइटम्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे बिलोंग टू द सेम क्लास? That means if they belong to the same class means your partition is pure. If they belong to the different class, then the partition is impure. If the probability is absolute one, मतलब अगर आप दो आइटम सेलेक्ट करते हो तो 100% वो एक ही क्लास को बिलोंग करेंगे, which is good. That means they belong to one gender. And if it is 0.5, it means poor. Okay. So what is the range of the Gini index? The range of the Gini index is from 0.05 to 1. That's it. इसकी इतनी छोटी सी रेंज है। 0.5 means highly impure and 1 means highly pure. So what we want to do is we want to achieve the Gini index equal to 1. अब हम लोग उस एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करेंगे जो 1 के क्लोज हो, जो सबसे क्लोज होगा 1 के, हम लोग उसको मानेंगे। So what is the formula for computing the Gini index? As you can see at the bottom, the formula for computing the Gini index is given. The distribution of one class its square plus distribution of the second class its square is the Gini index. अगर initially equal split है, मतलब 1 million boys हैं और 1 million girls हैं, that means 50% each. So that means 0.5 square plus 0.5 square, which means 0.25 plus 2.5 is 0.5. अगर एक क्लास 100% है तो दैट मीन्स 1 स्क्वायर और दूसरी क्लास 0 है, दैट मीन्स 0 स्क्वायर, विच मीन्स 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, विच मीन्स हाईली प्योर। तो हाईली प्योर नहीं है तो अगर एक क्लास में 0.714 है और एक में 0.286 है तो आप इसका स्क्वायर निकालिए और इसके स्क्वायर में कर दीजिए, द आंसर इज दिस। अगर एक क्लास 0.8 है और दूसरी 0.2 है यानी इससे बेटर है तो the answer is 0.68. So we will select this one. Isn't it? As simple as that. लेकिन आपको फिर से बताना चाहता हूं कि what is Gini score? Gini index. Gini index gives you the probability that if we select two random items from a set. I repeat, Gini index gives you the probability if we select two random items from a set. What is the probability that they
belong to same class. As simple as that. अगर वो एक ही क्लास को बिलोंग करते हैं, द Gini index score is good, and if they do not belong to the same class, the Gini index score is poor. So what is the value of the poor Gini index score is 0.1, and what is the value of the best Gini index score is 1. So this is one of the methods that we can use to measure the, you can say, attribute selection, which is good for you. The other one is called the information gain. So this is a different method that we will see here, and this method is basically based on machine learning concept. So हम लोग यहाँ पर machine learning concept को use करते हैं, और काम हमारा वही है कि हम लोग purity को define करते हैं. तो वही है कि the split is pure if it contains only one class. यानी अगर सारा का सारा डाटा स्प्लिट करने के बाद बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, तो इट इज प्योर, अदरवाइज इट इज नॉट प्योर. इंफॉर्मेशन थ्योरी जो है, कॉन्सेप्ट है, इट इज बेस्ड अपॉन measure that is called the entropy. और एंट्रोपी क्या मैयर करती है? एंट्रोपी मैयर्स हाउ disorganized a system is, and what we want is less disorganized system. Okay, attribute with the highest information gain is chosen as the splitting attribute for the node n. तो हमने जिस एट्रीब्यूट जिसकी हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन है, हम लोग उसको चूज करते हैं एज द attributes for the splitting of a particular node. तो आगे, what is the definition of an entropy? ये बहुत जरूरी है. Entropy may be defined as the measure of number of true and false questions it would take to determine the state of a system. यानी अगर आपको 10 क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं कि व्हाट इज योर परसेंटेज, व्हाट इज योर अटेंडेंस, व्हाट इज योर प्लेसमेंट, सो द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हमें चाहिए, क्या आपकी परसेंटेज 60 से ज्यादा है, क्या आपकी अटेंडेंस 70 से ज्यादा है, क्या आप ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं, क्या आपका कोई बैकलॉग है, तो द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हमें लगेंगे, द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट हमें लगेंगे इस चीज तक पहुंचने के लिए is defined as entropy. तो अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 16, तो हम लोग 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16. सो टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो हमें रिक्वायर्ड हैं इस चीज को बताने के लिए, दैट आर 4. जैसे 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0, इस तरह के टोटल नंबर ऑफ 16 सेट्स बन सकते हैं यूजिंग 4 बिट्स. तो टोटल नंबर ऑफ 16 क्वेश्चंस के लिए 4 बिट्स हमें चाहिए इसको आइडेंटिफाई करने के लिए. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि व्हाट इज एन एंट्रोपी. एंट्रोपी में बी डिफाइंड एज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जितने हमें क्वेश्चंस चाहिए उस जगह तक पहुंचने के लिए. तो एंट्रोपी मेजर कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं? एवरेज वेटेड सम ऑफ द proportion ऑफ ऑल टारगेट वैल्यूज इन द नोड. ध्यान दीजिए, एवरेज वेटेड सम, यानी हम लोग सबका सम निकालेंगे. एवरेज वेटेड सम ऑफ द proportion ऑफ ऑल टारगेट वैल्यूज इन द नोड मल्टीप्लाइड बाय बेस टू लॉगरिथम ऑफ दैट proportion. उसको मल्टीप्लाई करेंगे टू लॉगरिथम ऑफ दैट proportion, और बाद में उसको -1 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, बिकॉज द वैल्यू दैट वी गेट बाय मल्टीप्लाइंग इज नेगेटिव. तो हम लोग उसको बाद में -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू? एंट्रोपी स्कोर ऑफ 1. अगर आपका एंट्रोपी स्कोर जो है वो 1 आता है, तो उसका मतलब क्या है? इफ द एंट्रोपी स्कोर you get is 1, means that two classes are represented equally. ठीक है. गिन्नी में क्या था? गिन्नी में अगर 1 आया तो दैट मीन्स वेरी गुड, लेकिन एंट्रोपी में अगर 1 आया तो इट मीन्स बैड.
और गिनी में 0.5 meant बैड और एंट्रोपी में 0 मीन्स गुड। तो एंट्रोपी की रेंज क्या है? 0 to 1। गिनी में कितनी थी रेंज? 0.1 to 0.5 to 1। इसमें दिस वाज गुड और एंट्रोपी में दिस इज गुड। सो नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है दैट यू कैन सी। The formula, as you can see at the bottom, is the 0.1 into probability of class 1 into log 2 probability of class 1 plus p of class 2 multiplied by log 2 of p of class 2। तो यहाँ पर हमें एक दिया गया है। तो पहले की प्रोबेबिलिटी यानी फर्स्ट की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 0.875। दूसरे की नेचुरली 1 माइनस 0.875 होगी विच इज दिस। और हम लोग पहले में क्या करेंगे? 0.875 को log log 2 के साथ उसके मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरे को log 2 ऑफ 0.1 और फिर दोनों को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर इज 0.544। ये बिल्कुल मिडल के अंदर है लेकिन इट इज ओके। दूसरे के अंदर आप देख सकते हैं कि 0.2 है एंड 0.8 है। द आंसर इज 0.722। ठीक है, तो इस तरह से आप कंप्यूट कर सकते हैं। So that is the end of the today's lecture, students. I hope you enjoyed this lecture. This is a little technical, but there is no need to worry. What we have done here is the decision tree algorithm in which हमें पता है कि डेटा बिलोंगिंग टू टू क्लास हमें दिया गया है। हम लोग उसको स्प्लिट करते हैं बेस्ड अपॉन सम मेजर और प्योरिटी को हमने अचीव करना है। इसके लिए हमने एल्गोरिदम कौन सी देखी है? ID3 एल्गोरिदम नोट्स के अंदर अवेलेबल है और इस लेक्चर के अंदर भी अवेलेबल है, आप उसको ध्यान से देख सकते हैं। फिर हमने देखा कि जब हम लोग मैयर करते हैं तो हम लोग कौन से एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करें, उसके लिए हमने एट्रीब्यूट सिलेक्शन मैयर की दो प्रॉपर्टीज जो हैं वो देखी हैं। वन इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन गेन एंड द अदर वन इज कॉल्ड गिनी इंडेक्स। तो आप depending upon what type of data you have, you can select any one of these two for that. So in the next lecture, we will discuss prediction. Till then, it's goodbye from my side.